Hello everyone. So today our next topic is Z scheme, which is also known as non-cyclic photophosphorylation. Yeah, this is also important for our AWS exam. So let's start. So first we'll start with the photosynthesis. Photosynthesis occur in the chloroplast. That's the first thing. And then there are two stages of photosynthesis. One is light reaction, another one is C3 cycle or dark reaction, right? So the purpose of light reaction is to form ATP and to form NADPH. Okay, these two things need to be formed. So today we are going to discuss about this light reaction. How does the ATP and NADPH formed? Definitely this forms with the help of electron transport chain. And if you have seen my previous class, so we discuss about photosystem 1 and photosystem 2, in which we have all the pigments that absorbs the sunlight. That is your LHC, light harvesting complex, right? And this sunlight that get absorbed will transfer the electron in electron transport chain and leads to the formation of NADPH as well as ATP. So this is, let's see how does these both two photosystems involved in this process. So first we're gonna discuss about non-cyclic photophosphorylation, which involves the both PS1 and PS2. Both photosystem is involved, photosystem 2 and photosystem 1. In this process, water also splits and give you hydrogen ion as well as electron and oxygen. The purpose of this non-cyclic photophosphorylation is to produce ATP and NADPH, and it shows the flow of electrons. Yeah, so try to understand the location. So we have a chloroplast. This is the chloroplast here present, and in the chloroplast we have thylakoid membrane. Over the thylakoid membrane we have both the photosystem located, photosystem 2 and photosystem 1. So photosystem 2 will absorb the sunlight first. It will take the photon and then it will activate, and then it transfer the electron to photosystem 1, and then photosystem 1 will transfer the electron further and form NADPH. That is the process here. ATP is formed over here क्योंकि यहाँ ल्यूमन पे आपके पास एक F0 F1 पार्टिकल होते हैं, जो ये F1 होता है और इसको F0 कहते हैं. यहाँ पे ल्यूमन में ही वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है. तो यहाँ पे अगर मैं वाटर की स्प्लिटिंग दिखाऊं तो वाटर विल फॉर्म हाइड्रोजन एंड विल फॉर्म ऑक्सीजन एंड विल फॉर्म इलेक्ट्रॉन्स, राइट. सो ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसके थ्रू पास हो जाता है और ATP क्रिएट कर देता है, क्योंकि यहाँ पे जो एंजाइम होता है इसमें वो होता है ATP सिंथेटेज. और यहाँ पे NAD को प्रोड्यूस करने के लिए भी एक एंजाइम होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं NADP सिंथेटेज. यहाँ पे भी एक एंजाइम प्रेजेंट है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे, जिसको हम लोग बोलते हैं NADP सिंथेटेज. और यहाँ ल्यूमन पे जो एंजाइम प्रेजेंट है, ये ATP जो है वो ल्यूमन पे प्रेजेंट है. सो दैट जब हाइड्रोजन आयन सारे F0 F1 से पास होंगे, सो दे प्रोड्यूस द ATP. That is the purpose of this Z scheme or Z cycle. The purpose of the Z cycle is to form the NADPH and to form the ATP. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम फोटोसिस्टम 2 टू फोटोसिस्टम 1, और जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इट विल finally transport the electron to NADP synthetase to form NADP. In that same process, because of the photolysis of water, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन क्रिएट हो जाता है ल्यूमन में. ये हाइड्रोजन पास आउट होता है थ्रू दिस F0 and F1 पार्टिकल. As you can see, if it is visible, F1 and F0 particle, and it will releases the ATP. So let's understand it in more detail. यहाँ पे आप फुल ट्रांसफ़र देख रहे हैं. तो यहाँ पे फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट है, विच कैप्चर द सनलाइट
ऑफ 680 नैनोमीटर, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, ठीक है। फिर ये इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, फर्स्ट वन जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, फियोफाइटीन। सो फियोफाइटीन इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है प्लास्टोक्विनोन में, दिस इज इन शॉर्ट वी राइट इट प्लास्टोक्विनोन, यू कैन सी प्लास्टोक्विनोन इज रिटन। सो फियोफाइटीन से प्लास्टोक्विनोन में जाता है, फिर साइटोक्रोम B6F में जाता है, एंड देन इट गोज टू प्लास्टोसाइनिन। अब देखो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे ये हाई एनर्जी है, बट जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एज यू नो इट इज शोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो यहाँ पे एनर्जी लो है, ठीक है। अब जब प्लास्टोसाइनिन के पास इलेक्ट्रॉन गया, ये इलेक्ट्रॉन फिर P700 रिसीव करेगा और फिर ये एक्साइट हो जाएगा, और जब P700 एक्साइट होगा, सो ये इसका आयरन सल्फर प्रोटीन, ये इसका प्राइमरी एक्सेप्टर है। फिर ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, फिर प्राइमरी एक्सेप्टर के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा फेरिडॉक्सिन में, फिर जाएगा यहाँ NADP को ये रिड्यूस कर देगा NADPH में बाय द एंजाइम NADP सिंथेटेज, जो कि अगर आपको रिमेंबर हो वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, इसके पहले वाले डायग्राम में हमने देखा। सो दिस इज एंटायर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो जैसा कि मैंने बताया था, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यहाँ PS2 से PS1 में, और फिर PS1 यहाँ से जाके NADP सिंथेटेज को दे रहा है, और यहाँ से वो NADP स्ट्रोमा से ले रहा है और इसको रिड्यूस कर रहा है NADPH में, ठीक है, बाय द एंजाइम NADP सिंथेटेज, जो कि यहाँ प्रेजेंट है। और यहीं पे क्योंकि फोटोन्स के वजह से फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है, लेट मी चेंज द कलर, यस, यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन है। इसके अलावा यहाँ पे जो प्लास्टोक्विनोन है, दिस इज़ ऑल्सो ब्रिंगिंग द हाइड्रोजन आयन फ्रॉम आउटसाइड टू द ल्यूमेन, तो बहुत सारा हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे। अब जैसे ही बहुत हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे जो पार्टिकल प्रेजेंट है F1 F0 पार्टिकल, राइट, यहाँ से ये सारे हाइड्रोजन रिलीज होने लगेंगे। सो ऑल द हाइड्रोजन स्टार्ट एंटरिंग इनटू दिस F0 F1 पार्टिकल। यहाँ पे ये ADP और एक फॉस्फेट उठाएंगे एंड देन कन्वर्टेड इनटू ATP by ATP synthetase. I hope that's clear. So this is how after this non-cyclic photophosphorylation you get ATP and NADPH product. और अब ये ATP और ये NADPH C3 साइकिल में यूज़ होने वाले हैं, जो कि आपका डार्क रिएक्शन है, एंड विच जिसके वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल है, so you can check out. Now as you can see, इस entire ट्रांसपोर्ट में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है इन विद द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इन दिस एंटायर फेज, if you can actually see, it is forming a Z shaped structure, therefore it is called Z cycle. So you can see it goes like wait, yeah, it goes like this and it goes like this and like this, so it's a Z, so therefore we call it a Z scheme. Clear? This is the overview of Z scheme. What we have discussed is being mentioned over here. It connect. So in Z scheme में हमें दोनों की ज़रूरत होती है, PS2 की भी और PS1 की भी, और ये नॉन साइक्लिक है, ये याद रखना है, ठीक है। इसमें वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है, NADPH और ATP इसका एंड प्रोडक्ट है, जिसको हम किसी केल्विन साइकिल के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो या अगर Z स्कीम क्लियर हो गया तो एक और फॉस्फोराइलेशन होता है जिसको कि हम लोग साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, और साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन थैलाकॉइड में होता है, बट ये बेसिकली एक स्ट्रोमल लैमेला में होता है,
स्ट्रोमल लैमेला जो कनेक्ट करता है थैलेकॉइड को, राइट, वहाँ पे होता है। अच्छा, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में सिर्फ एटीपी प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूसेस एटीपी, कोई NADPH नहीं प्रोड्यूस होता। वाई? क्योंकि इसमें इनके पास NADP सिंथेटेज नहीं है, जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे है ना, वो NADP सिंथेटेज प्रेजेंट नहीं होता, सो दे कैन नॉट फॉर्म NADPH। इनके पास PS2 भी नहीं होता है, सो सिर्फ और सिर्फ PS1 प्रेजेंट होता है। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन तभी होगा जब 700 नैनोमीटर की लाइट अवेलेबल होगी। If you can read second point, it is very clearly indicating that it occur in stromal lamella. It lack PS2 and NADP reductase both. So let's check out the location. You can see this is again the diagram of a chloroplast, and here you can see the grana and all other thing. This is a chloroplast diagram. Here you can see the grana, which is this one, the thylakoid membrane over here, and you can see stromal lamellae. So stromal lamellae is the one which is connecting the grana, so this connection point, or you can say this is a stromal lamella where PS1 is present, and in this only and only cyclic photophosphorylation takes place. Because there is no PS2, so directly 700 नैनोमीटर का लाइट लेगा ये, और बिकॉज NADPH रिडक्टेज भी नहीं प्रेजेंट है, सो दैट इज़ वाई इट डजंट प्रोड्यूस NADP का भी प्रोडक्शन नहीं होगा, ओनली एंड ओनली ATP प्रोड्यूस होगा फॉर साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन. So let's check out the steps. These are the steps of photosystem 1, or you can say cyclic photophosphorylation. So as you can see what is happening, again the photon comes which is of 700 nanometer, right? It excites the electron get excited by the chlorophyll A, and then it send the electron to ferritoxin. अब FD के पास तो गया, जैसे हमारे Z स्कीम में भी हो रहा था, वो FD पे जा रहा था फ्रॉम फोटोसिस्टम 1, बट बिकॉज यहाँ पे फोटोसिस्टम 2 नहीं है, और क्योंकि यहाँ पे NADH को प्रोड्यूस करने के लिए भी एंजाइम नहीं है, सो फ्रॉम फेरिडॉक्सिन द इलेक्ट्रॉन अगेन गोज टू प्लास्टोक्विनोन, then cytochrome B6F, then plastocyanine, and finally the electron goes back to the chlorophyll A of photosystem 1. So therefore it is called cyclic photophosphorylation. Now अब इससे कुछ क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, सो लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन कुड बी फ्रेम्ड. इफ़ यू सी दिस डायग्राम अगेन, तो यहाँ से फोटोन आ रहा है, सनलाइट, ठीक है, एक्टिवेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बिकॉज ऑफ द फोटोन वाटर स्प्लिटिंग भी हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है, राइट. नाउ वेयर डज दिस इलेक्ट्रॉन गो, ये क्वेश्चन है, ठीक है. So this electron is go again to PS2, right? This electron is taken up by PS2. So we can say that photolysis of water is associated with PS2, not to the PS1. That is the first thing. अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो तो यहाँ से निकल जाएगा, प्लास्टोक्विनोन भी हाइड्रोजन दे रहा है लेके, यहाँ से हाइड्रोजन लेकर के प्लास्टोक्विनोन इज सेंडिंग इनटू द ल्यूमेन, और फिर सारे हाइड्रोजन यहाँ पे ATP बना रहे हैं. अच्छा, यहाँ पे जो फेरिडॉक्सिन है वो इस एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा है, NADP सिंथेटेज को, और ये स्ट्रोमा से NADP लेके उसमें हाइड्रोजन ऐड करके NADPH बना रहा है, और ये हाइड्रोजन भी स्ट्रोमा से ले रहा है. ओके,
सो इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किया जिससे एनर्जी मिला, इसने एक्टिवेट किया इसको, NADP भी स्ट्रोमा से लिया और हाइड्रोजन भी स्ट्रोमा से लिया, एंड देन इट रिड्यूसेस टू फॉर्म NADPH. फाइन. और यहाँ पे एक बार अगर आप साइक्लिक देख ले, तो लेट मी जस्ट डिलीट द वॉट एवर आई हैव रिटन जस्ट टू शो यू द साइक्लिक. ओके, इतना बहुत है. तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा साइक्लिक आपको बता दूँ, तो ये PS1 है. अगर साइक्लिक सिर्फ हो रहा है स्ट्रोबल लेवल में, तो PS1 FD को दिया. अब ये FD क्योंकि यहाँ पे अगर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में NADP रिडक्टेज होता ही नहीं है, ठीक है, तो ये FD इलेक्ट्रॉन वापस प्लास्टोक्विनोन को दे देगा, ठीक है, और फिर से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा एंड देन द इलेक्ट्रॉन कम्स हियर अगेन. सो दिस इज अ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. आई होप द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर. इफ स्टिल एनी डाउट, एक बार फिर से वीडियो को देखिए, चीज़ें समझ आ जाएंगी. फिर भी कोई क्वेश्चन है कमेंट में प्लीज़ आस्क. So yes, we also have a PYQ. Let's do some questions, like PYQ based some questions are there. Let's do that. So this is the first question. Which photosystem is involved in cyclic photophosphorylation? Cyclic. So in the cyclic we have only photosystem 1, so the answer will be B. Z scheme describes the flow of electron from. So from where the electron flow? Electron flow from, yeah, what is the answer? Water to NADP. वाटर का इलेक्ट्रॉन ह्यूमन से लेकर के फिर NADP प्लस में जाके NADPH में रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, इन स्ट्रोमा. सो द आंसर ओवर हियर इज C. Which product is not formed in cyclic photophosphorylation? Which is not formed. So yeah, NADPH will not form. So option will be B. Oxygen is released during which process? Cyclic phosphorylation, non-cyclic, Calvin or photorespiration? So Calvin और photorespiration तो बाद के processes है. Cyclic photophosphorylation में splitting of water is not taking place. Photolysis of water is not concerned. So the answer is non-cyclic. Last question of the day. What is the final electron acceptor in non-cyclic photophosphorylation? That means in Z scheme. So last final electron acceptor is NADP plus. Option D will be answer. So that's all for today. Thanks for joining. Please hit the subscribe button and hit the bell icon for notification. And if you have any doubt, you can ask in the comment. You can also suggest if you want any topic or any questions to be discussed. Let me know. Thank you. Bye bye.